اللہ اللہ، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا آپ لوگ کا کیا تعلق شہرزاد کے باس سے؟ تو تمہیں مداخلت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم انہیں جانتے ہیں اور انہیں دیکھنے جا رہے ہیں۔ چلو ناہیدہ بیگم، اب رپورٹ دینا بند کرو اور چلو۔ کیا شہرزاد بیٹی کے منگیتر سے ملنے کے لیے بہو بیگم سے اجازت لوگی؟ چلو۔ کیا کہا منگیتر؟ اونر صاحب کیا شہرزاد کے منگیتر ہیں؟ نعمت، کین کا خیال رکھنا بیٹی، کھانا بھی کھلا دینا، ٹھیک ہے؟ فکر نہ کریں آپ، کتنی اچھی بات ہے نا، شہرزاد بیگم شادی کر رہی ہیں۔ کریم، کیا ہوا امی؟ براق کے ٹیچر کا فون آیا تھا، براق مراکش میں ہے۔ تو آپ اس کے لیے پریشان ہیں؟ 18 دن سے وہ وہاں گیا ہوا ہے۔ کتنی اچھی بات ہے نا کہ وہ 18 دن سے وہاں عیش کر رہا ہے، مراکشی حقہ پی رہا ہے۔ کریم، وہ زندہ ہے یا مر گیا کچھ معلوم نہیں ہے، تم اتنے ریلیکس کیسے ہو؟ کیا میں ریلیکس کر رہا ہوں امی؟ اونر ہاسپٹل میں ہے، کمپنی بے یار و مددگار حالت میں ہے، ہمیں نقصان دینے والے ابھی تک پکڑے نہیں گئے۔ اونر کے بعد میرا نمبر بھی آ سکتا ہے اور آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اس حالت میں ریلیکس کروں گا؟ ان تمام باتوں سے اس کا کیا تعلق ہے بھلا؟ کہنا کیا چاہتی ہیں آپ؟ اب میں مراکش جا کے براق کو ڈھونڈوں امی؟ ہاں اوکے ٹھیک ہے، اونر کو اس حالت میں چھوڑ کے اور بنیادی کمپنی کو تالا لگا کے چلا جاتا ہوں میں، ٹھیک ہے نا؟ اگر تم نہیں جا کر ڈھونڈ سکتے تو میں خود ڈھونڈ سکتی ہوں۔ اچھا امی، اچھا رکیں۔ ہیلو مہتاب صاحب، براق مراکش میں ہے، اس کی خیریت معلوم کر کے بتائیں مجھے۔ شہرزاد بیٹا، جا کر تھوڑا سا آرام کر لو، میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ تمہاری فیلنگز کیا ہیں۔ میں جانتا ہوں یہ کہیں نہیں جائے گی۔ کیا جانا چاہتی ہو تم؟ میں نہیں جاؤں گی۔ اچھی بات ہے، اگر شہرزاد بیگم جگہ چھوڑتی تو میں بھی اپنے بیٹے کے پاس رہنا چاہتی تھی۔ مجھے پتا ہے آپ خام پریشان ہوتی، شہرزاد ہے نا میرے پاس۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام وعلیکم برہان صاحب۔ السلام۔ آنر صاحب آپ کی خیریت معلوم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ جلدی ٹھیک ہو جائیں آپ، بہت شکریہ۔ بہت دکھ ہوا ہمیں یہ سن کر۔ آپ کا شکریہ، آپ نے اتنی زحمت کیوں کی؟ برہان صاحب کین کے دادا ہیں اور ناہیدہ بیگم دادی ہیں۔ فریدہ بیگم اونر کی والدہ ہیں اور یہ اونر کی خالہ ہیں۔ ہمت رکھیں فریدہ بیگم، آپ نے بہت زحمت کی۔ کیا کہہ رہے ہیں آنر صاحب آپ؟ ارے آپ لوگ کھڑے کیوں ہیں؟ ابھی تک بیٹھے نا۔ تو آپ ہیں کین کی دادی، آپ لوگ بہت خوش قسمت ہیں، اتنا پیارا پوتا ہے آپ کا، بہت اچھا بچہ ہے، مجھے بھی بہت پیارا لگا، بہت پیارا۔ تم کیا اب بھی اسی رپورٹ کے بارے میں سوچ رہی ہو؟ کیسے نہیں سوچوں، وہ مجھ سے بات ہی نہیں کر رہی۔ مجھے سب کچھ معلوم ہے بینو، ایسا کیوں ہوا، کس کی وجہ سے ہوا، میں سب کچھ جانتا ہوں۔ امی کی طرف سے میں معافی مانگتا ہوں۔ میں آپ سے نظریں نہیں ملا پا رہی، عجیب لگ رہا ہے۔ انہوں نے جب تصویریں دیکھی تو حیران ہو گئی، مگر دیکھنا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، I promise۔ تھوڑا سا وقت گزرنے دو۔ یو آر رائٹ، بلا وجہ میری وجہ سے اتنی پریشانی آئی۔ ہمارے تعلق کو کیا تم پریشانی سمجھتی ہو؟ اونر صاحب کب تک ٹھیک ہو گئے ہوں گے نا؟ بہت ڈر گیا تھا میں اونر کو دیکھ کے۔ امید ہے کہ ملزم بھی پکڑا گیا ہے؟ پکڑے جانے والا تو صرف ایک مورا ہے معاملے کو دبانے کے لیے، اصل میں تو جس نے کروایا اسے پکڑنا ہے۔ چلو چھوڑو سب کچھ، میں یہ پی سکتا ہوں؟ میں تمہیں دوسری بنا دیتی ہوں۔ نہیں میں یہی پی لوں گا۔ اس کے اندر کچھ ملایا ہے کیا؟ ٹینشن ہو رہی تھی، صرف ریلیکس ہونا چاہتی تھی۔ کریم پلیز میری بات تو سنو۔ کریم
आखिर वो कौन लोग थे जो ओनर से मिलने आए थे और किस हक से आए थे? इंसानियत के हक से। ओह, मरीज से मिलने आने के लिए कोई रिश्ता होना जरूरी तो नहीं है। बिल्कुल। अगर उसके माँ बाप होते तो ठीक था। और ये मंगेतर वाली बात मुझे पसंद नहीं आई। तुम्हें ये बात कुछ अजीब नहीं लगती? मेरे ख्याल में तो कुछ अजीब नहीं। फूल लेकर आए थे मिलने, तुमने देखा नहीं कैसे मिल रहे थे उससे? इसका मतलब तो ये हुआ कि बहुत इज्जत करते हैं वो लोग शहरजाद। अब ऐसा मत करो खुदा के लिए। थोड़ी अच्छाई है उसके लिए, लेकिन ये क्या बेवकूफों वाली हरकत थी? अभी मैंने शहरजाद और उसके बेटे को कबूल भी नहीं किया था कि देखो ऊपर से सास और ससुर भी आ गए हैं मेरी जिंदगी में। मुझे तो तुम पर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा फरीदा। तुम्हारे बेटे की जान लेने की कोशिश की है किसी ने। तुम्हें जिस बारे में सोचना चाहिए तुम उसके बारे में तो सोच नहीं रही हो, बिला वजह की चीजें सोच रही हो। करीम इस मसले को हैंडल कर रहा है और हमला करने वाला पकड़ा गया, जेल में है। यानी तुम्हारे लिए बात खत्म। तुम ये क्यों नहीं सोचती हो कि दोबारा ऐसा हो गया तो क्या होगा? तुम्हारी प्रॉब्लम तो सिर्फ शहरजाद है। क्या मतलब? क्या दोबारा भी हो सकता है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है मेरी जान। अरे तुम परेशान मत हो, वो मसला खत्म हो गया फरीदा। मेरे कहने का मतलब तुम्हें सिर्फ ओनर की खुशी के बारे में सोचना चाहिए, बाकी तमाम चीजों को छोड़ दो। ये पी लें। बुरहान साहब को हादसे का कैसे पता चला? करीम साहब ने जब कॉल की तो मैं उन्हीं के पास थी। इस हादसे के बारे में न्यूज में भी बताया गया है। इसका मतलब है मैं मशहूर हो गया हूँ। आप पहले से ही बहुत मशहूर हैं। कैन क्या बुरहान साहब के पास है? उसने आने के लिए काफी जिद की, लेकिन मैं उसको फिर भी घर पे ही छोड़ आई। तुमने अच्छा किया, उसको यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैं ठीक हो जाऊं तो उसे कहानी सुनाऊंगा। मुजरिम को उन्होंने कैसे पकड़ा आखिर? करीम साहब की वजह से। करीम? उन्हें ढूंढने के लिए दिन रात एकजुट कर दिया था। एक चमचा और ले लें। बस करो भाई। ठीक है। शहजाद, मुझे अकेला मत छोड़ना। नहीं छोड़ूंगी। अब आप थोड़ा सा आराम कर लें। मैं सोना नहीं चाहता, सिर्फ तुम्हें देखना चाहता हूँ। आपको रेस्ट की जरूरत है। तुम्हें देखने से मैं ठीक हो जाऊंगा। तो करीम ने मुजरिम को ढूंढ निकाला है। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। पुलिस को बता दिया उसका, जिसने किया था पकड़ा गया, तो अब मेरा काम खत्म हो गया ना? नहीं, खत्म नहीं हुआ। जिसने किया है उसकी जगह किसी और को पकड़वा देने से बात खत्म नहीं हो जाती शहाबुद्दीन। जिसने करवाया मुझे वो चाहिए। वैसे तो खलील जेल में ही है। शहाबुद्दीन, खलील बेवकूफ आदमी नहीं। मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ कि वो ये हरकत नहीं कर सकता। ये काम किसने किया है और क्यों, बताओ मुझे। मैं जो कर सकता था वो कर चुका था, पर यहाँ मेरा काम खत्म नहीं हुआ। तुम तो बाहर हो शहाबुद्दीन, हो सकता है ये काम तुमने किया। मैं क्यों करूंगा? अल्लाह अल्लाह, शायद मैं तुम लोग की बात सुनकर बहुत बड़ी गलती कर दी।
18 दिन पहले मराकश गया था और उस दिन मराकश के एयरपोर्ट पर पहुंचा तो उसके साथ जो लड़की थी उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था। ड्रग्स निकली है उनके पास से। 18 दिन से जेल में है। कॉन्सुलेट की मदद से उनके बारे में मालूम हुआ है। अगर आप जोर नहीं देते मालूम करने के लिए तो शायद कभी भी मालूम नहीं होता। ओ खुदा, हीरोइन की स्मगलिंग, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। बैग ड्राइवर को देके कहो गाड़ी में रख दे इसे। जी ठीक है। ये आप क्या कर रही हैं? मैं कहाँ जा रही हैं? जेल में पड़े अपने बेटे को छुड़ाने मराकश जा रही हूँ करीम साहब। अम्मी, ये ना करें, मैं चला जाऊंगा। नहीं नहीं, तुम अपना काम करो और भाई के लिए अपने आप को परेशान मत करो। अम्मी प्लीज। बहुत देर हो चुकी है, हमें चलना चाहिए। अम्मी प्लीज, वकील साहब देख लेंगे। मैं आपको मराकश जाने नहीं दूंगा। आप मेरी बात को समझें। नहीं सोच सकती, मैं जा रही हूँ। अम्मी नहीं। हाथ छोड़ो मेरा। अम्मी मैं कह रहा हूँ ना, कल चला जाऊंगा। आप वहाँ जाके बैठे प्लीज। अपने बेटे से मिलने के लिए तुम्हारी इजाजत नहीं चाहिए करीम, हटो आगे से। हीरोइन की स्मगलिंग करने वाले बेटे के पास जाएंगे उसे छुड़ाने के लिए? यानी तुम्हें यकीन है कि वो ऐसा कर सकता है? अम्मी, वो एयरपोर्ट पर पकड़ा गया हीरोइन के साथ। अब इसमें ना समझने वाली कौन सी बात रह गई है? हो सकता है किसी काम से गया हो, गलतफहमी भी तो हो सकती है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। शुक्रिया। कैसे हैं? शुक्रिया। थोड़ी परेशानी हुई मगर फराग साहब को रहा करवा दिया गया है। प्रॉब्लम क्या थी? सिविल बेगम ठीक समझ रही थी, ये उस लड़की का ही काम था। जमीला तोबा, कोलंबिया से ताल्लुक है इसका। फराग साहब को जोर दिया था कि मराकश चलते हैं घूमने। इसका ताल्लुक एक हीरोइन स्मगलिंग ग्रुप से है। इसके खिलाफ तो बहुत से केसेस हैं। एक बार वो माल्टा में भी पकड़ी गई थी। तो बिल्कुल अंदाजा नहीं हुआ ये कौन है? अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है उनके लिए। वो देखने में तो बहुत सीधी सादी सी लगती है। उसने बुराक को क्यों चुना इस काम के लिए? बुराक साहब सीधे साधे लड़के होने की वजह से और एक बड़ी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी हैं। उसने सोचा कि कस्टम वाले उन पर शक नहीं करेंगे। तो कैसे हल हुआ ये मसला? कस्टम वालों ने बहुत हेल्प की। वो समझ गए थे कि बुराक साहब बेकसूर हैं। अगर हम नहीं जाते तो वो शायद अंदर ही रहे। फिर भी जल्दी निकाल लिया आप लोगों ने उसे? जी बिल्कुल। बुराक को आपने वापस क्यों जाने दिया अम्मी? यहाँ इस्तांबुल लेकर क्यों नहीं आए? मुझे नहीं मालूम था कि तुम अपने भाई को इतना ज्यादा मिस कर रहे थे। दोस्तों, 1 महीना हो गया है। 1 महीना हो गया ना? जी हाँ, जी हाँ। इस मुश्किल वक्त को आपने ऐसे तरीके से गुजारा है। जिन लोगों ने फूल भेजे और जो मिलने आए, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूं। अब मैं अपने आप को बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं। मुझे यकीन है कि बिनियापी को आपने मेरी कमी महसूस नहीं होने दी है। आपका शुक्रिया। आइंदा भी आप ऐसा ही करेंगे। ये तो बहुत जबरदस्त है यार। नई ली है क्या? नई है। ये तो काफी महंगी मालूम हो रही है। महंगी तो है यार, लेकिन अब मुझे पछतावा हो रहा है कि क्यों ले। खर्चा बहुत ज्यादा हो गया। ये तो तुम्हारे लिए आम सी बात है। पिछले ही हफ्ते तुमने अपने लिए एक नई जैकेट खरीदी थी। मजबूर हूँ यार, बुरहान अंकल का राइट हैंड हूँ। उनके साथ रहना है तो ऐसा करना ही होगा। कैसे फोन किया मेरी जान? मेरी जान क्या कर रही है इसलिए? दुकान पर हूँ, काम कर रही हूँ। दूध तो पी लिया है ना तुमने? हाँ पी लिया है। और दवाई तो तुम वक्त पर खा रही हो ना? हाँ, परेशान हो जाते हो। मैं अपना अच्छी तरह से ख्याल रख रही हूँ। ज्यादा काम मत करो तुम घर जाकर आराम करो, काम तो होता रहेगा। ठीक है, जान तो फिक्र ना करो मेरी। तुम भी अपना ख्याल रखना। वाकई ये आदमी 1 मिनट के लिए भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ता। बेचारा।
काम पर भी मेरे बारे में सोच रहा है क्योंकि वो तुमसे प्यार करता है। प्यार और तुम हो क्या उस पर शक करती रहती हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं वकील हूँ बरहान साहब का, उनकी तरफ से आया हूँ। मुआयने के लिए जो माल जाएगा वो तैयार हो गया क्या? अभी तैयार कर देता हूँ बाबा। मैंने कब कहा था तुमसे, और तुम अब भी कह रहे हो कि कर देता हूँ। वो दरअसल मैंने सोचा कि जो माल फिनिश पर है उसे देख लूं। फिनिश वाला माल जरूरी नहीं है। उस गनी को देखो जरा, 3 दिन में इंसान बन गया, मगर तुम अब भी वैसे के वैसे ही हो। तैयार कर देता हूँ बाबा, अब करने की क्या जरूरत है। अगर और कुछ नहीं कहना तो मैं जाकर उसे तैयार कर देता हूँ। जाओ जाओ, जो दिल चाहे करो। देखें, आप लोगों को अफसोस हो रहा है, मैं भी थक गया हूँ। अब ये मसला खत्म कर दें। तो किसने कहा था यहाँ बार बार आओ? जाए जाके अदालत में केस करें। आप खामोश रहें। एक बार फिर कह रहा हूँ, चलें ये काम अच्छी तरह खत्म कर देते हैं। देखिए बात सुनो, वो घर सिर्फ मेरा है, वापस देने का कोई इरादा नहीं है मेरा। ठीक है, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, मगर अब जब दोबारा आऊंगा तो इस तरह बात नहीं होगी हमारी। तो क्या धमकी दे रहे हो मुझे? छोड़ो जैस्मीन, आराम से बात करो। मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ जैस्मीन बेगम, सिर्फ समझा रहा हूँ। तुम अभी फोन करो अली कमाल को। रहने दो, फोन नहीं करूंगी। वो तुम्हें धमकी दे रहा था जैस्मीन। कहा ना, वो कुछ नहीं कर सकते। मेरा मूड वैसे ही खराब हो गया है, क्या अली कमाल का भी मूड खराब करें? वो तो ठीक है, जाने भी दो सफिया, खामोश रहो। आपने आते ही काम शुरू कर दिया ना? बोर हो गया था, क्या करता आखिर। ये लीजिए। शुक्रिया। कोई बात नहीं। ये क्या है? ग्रीन टी है, इलायची और नींबू भी है इसमें। मुझे ग्रीन टी अच्छी नहीं लगती, कॉफी चाहिए मुझे। कॉफी मना है आपको। ओनर प्लीज कुछ दिनों के लिए कॉफी ना पिए। आई रिक्वेस्ट यू। हमारे लिए। ठीक है, हमारे लिए। क्या हुआ? आपने तमाम लोगों से बात कर ली है ना ओनर? बिनियापी की पोजीशन तो खराब होते होते रह गई है। हाँ, मुझ पर हमला करने वाला आदमी पकड़ा गया है, जिसकी वजह से सब कुछ ठीक हो गया है। करीम ने बहुत अच्छा बयान दिया है। अच्छा ठीक है, अब मजीद आपको मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगी। ओह शहजाद, तुम नहीं होती तो मेरा क्या होता? अगर आपको कुछ हो जाता तो पता नहीं मैं क्या करती। ओनर, यार आते ही तुमने काम शुरू कर दिया। ये तो बात ही नहीं सुन रहे हैं करीम साहब। अब आप ही इन्हें समझाएं कि इन्हें रेस्ट की जरूरत है। अब मैं चलती हूँ। तुमने समझदारी का सबूत दिया, तुम्हारे बयान ने सब कुछ ठीक कर दिया है। छोड़ो भी यार, बस जो ठीक लगा कह दिया। मुझे जफर भाई ने बताया कि तुमने मुजरिम को पकड़ने के लिए दिन रात एक कर दिया था। तुम पे हमला कराने वाला आदमी जब तक पकड़ा नहीं जाता उस वक्त तक मेरा काम खत्म नहीं होगा ओनर। यानी अभी खत्म नहीं हुआ। मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं करीम? जब किसी दिन मुझ पर हमला हो उस वक्त कर देना। पागल मत बनो। थैंक यू सो मच।